اپنے مطالبات کے حق میں ٹرین مارچ، اساتذہ سڑکوں پر آئے تو لاٹھی چارج۔ کراچی میں سندھ کے سرکاری اساتذہ کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے پریس کلب پر احتجاج۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب پیش قدمی پر پولیس نے دھاوا بول دیا۔ لاٹھی چارج، آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال، کئی ٹیچرز زخمی، متعدد زیر حراست۔ اساتذہ کا کل سے تدریسی عمل کے بائیکاٹ کا اعلان۔ مارچ لے کر نکلے، آپ تو اپنے والد اور اپنی پھوپھی اور اپنے کرپٹ لوگوں کو بچانے کے لیے ٹرین مارچ کر رہے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں کوئی گن تھی، ان کے ہاتھوں میں آنسو گیس تھی، خدا کا خوف نہیں آتا آپ کو؟ ہم آپ سے انصاف مانگتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے انصاف دینا ہوتا، ان کو انصاف مل چکا ہوتا۔ سندھ کے سرکاری اساتذہ پر پولیس کا تشدد، اپوزیشن کے علاوہ بلاول بھٹو نے بھی مذمت کر دی۔ کہا پرامن مظاہرین کے خلاف ایسا اقدام ناقابل برداشت ہے، گرفتار اساتذہ کو رہا کیا جائے۔ لاٹھی چارج نہیں ہونا چاہیے تھا، مرتضی وہاب کا بھی اعتراف۔ ادھر نصرت سحر عباسی کا کہنا ہے بلاول نے والد اور پھوپھی کو بچانے کے لیے ٹرین مارچ کیا، ان کی حکومت نے اساتذہ کے ساتھ ظلم کیا۔ الیکشن کمیشن کے 2 اراکین کی نامزدگی کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں مشاورت پر تنازع۔ شہباز شریف کے آفس نے وزیر اعظم کے سیکریٹری کو جوابی خط لکھ دیا۔ کہا وزیر خارجہ کے دفتر کا خط آئین کے خلاف ورزی ہے، حالیہ خط بھی آئینی تقاضے پورے نہیں کرتا۔ مشاورت کسی نامزد شخص کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مشاورت کی حدود و قیود طے ہیں۔ نواز شریف کا شریف میڈیکل سٹی میں طبی معائنہ، میڈیسن، نیفرولوجی اور نیورولوجی کے پروفیسرز نے مشاورت اور تشخیص کی۔ انجائنا کے درد اور گردے کے کام کرنے میں خرابی پر اظہار تشویش، ادویات تجویز کر دی گئیں۔ مزید حکمت عملی ادویات کا اثرات دیکھنے کے بعد دیکھی جائے گی۔ نواز شریف کا کل بھی معائنہ ہوگا۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کسی شدت پسند تنظیم کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت داخلی سیکیورٹی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ۔ اجلاس میں وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، ڈی جی ISI کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم کو داخلی سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ پلوامہ حملے میں پاکستان کا کوئی شہری ملوث نہیں۔ بھارتی الزامات اور شواہد من گھڑت نکلے۔ نشاندہی کردہ 22 مقامات پر کسی کیمپ کا نام و نشان تک نہیں۔ پاکستان نے بھارتی ڈوسیئر پر تحقیقات مکمل کر کے جواب بھجوا دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی ڈوسیئر میں مولانا مسعود اظہر کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ بھارت کے خلا میں میزائل تجربات دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ بھارتی ویب سائٹ نے بھی مودی سرکار کے بالاکوٹ حملے کے دعووں کا پول کھول دیا۔ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق علاقے میں تمام عمارتیں صحیح سلامت موجود ہیں۔ امریکی اور برطانوی میڈیا نے بھی سیٹلائٹ تصاویر سے بھارتی جھوٹ کا بھانڈا پھوڑا تھا۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں کوئٹہ ایسوسی ایشن کے اعزاز میں عشائیہ ایسوسی ایشن کے برطانوی ممبران بھی شریک۔ ایسوسی ایشن کے چیئرمین میجر جنرل ریٹائرڈ سوماس کریئر اور پاکستانی ہائی کمشنر کا خطاب۔
लंदन में सिख वफ्द की पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से मुलाकात। बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह पर पाकिस्तानी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। करतारपुर राहदारी खोलने पर वजीर आजम इमरान खान की तारीफ। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क बरतानिया के ज़ेर एहतमाम स्मोकलेस तंबाकू के मुज़र असरात के हवाले से सेमिनार। पाकिस्तान समेत जनूबी एशियाई ममालिक के पॉलिसी मेकर्स शरीक मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान सोशल क्लब ग्लासगो के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल रोमान अहमद की खुसूसी शिरकत। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सियासत से बालातर होकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, मुकर्रिरीन का खिताब। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के जख्मी तालिब इल्म अहमद नवाज ने प्राइड ऑफ ब्रिटेन अवार्ड जीत लिया। कहते हैं पाकिस्तानी नौजवान इंतहाई बासलाहियत हैं। अवार्ड APS शोहदा के नाम। दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले मारूफ मौसीकार उमर साइमन की पहली नातिया एल्बम 29 मार्च को डबलिन में लॉन्च होगी। कहते हैं अपनी आवाज के जरिए इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेनमार्क के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान के हवाले से रंगारंग तकरीब। बच्चों की तकारीर और मिली नगमों ने माहौल गरमा दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी की मिले जोशो जज्बे के साथ शिरकत। बरतानिया में पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश के लिए सलाम पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल जारी। मैनचेस्टर में पाकिस्तानी फिल्म रहम ने शायकीन को अपना घरवीदा बना लिया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री सलाहियतों से मालामाल, इसे प्रमोट करने की जरूरत है। फिल्म बीनों की गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं महक असलम और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। तो नाज़रीन, अपने मुतालबात के हक में तो किया गया ट्रेन मार्च, लेकिन जब असातिज़ा सड़कों पर निकलेंगे तो और किया गया लाठीचार्ज। मेरा नाम दानिश हुसैन और आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर बात करते हैं। कराची के रेड जोन में गवर्नमेंट सिंध टीचर एसोसिएशन के एहतजाज पर पुलिस ने धावा बोल दिया। 5 अफराद जख्मी हुए, जबकि असातिज़ा ने एहतजाजन जुमे से सिंध भर में तदरीसी अमल के बायकॉट का भी ऐलान किया और है। सदर टीचर्स एसोसिएशन अशरफ खासखेली कहते हैं कि मुतालबात पूरे ना होने तक ये एहतजाज जारी रहेगा। कराची के रेड जोन में गवर्नमेंट सिंध टीचर्स एसोसिएशन के एहतजाज पर पुलिस ने धावा बोला और 5 असातिज़ा को जख्मी कर दिया। गवर्नमेंट सिंध टीचर्स एसोसिएशन के असातिज़ा का मुस्तकिली, तरक्की, टाइम स्केल समेत 8 मुतालबात की मंजूरी के लिए कराची प्रेस क्लब पर धरना। असातिज़ा के मुतालबात मानने के लिए सूबाई वज़ीर तालीम या किसी हुकूमती नुमाइंदे ने लिफ्ट न कराई तो असातिज़ा ने रेड जोन की जानिब पेशकदमी शुरू की। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और लाठियों का बेदरीग इस्तेमाल किया, जबकि मुजाहिरीन ने अपना जवाब पत्थर से दिया। इस दौरान 5 असातिज़ा जख्मी हो गए।
रेंजर्स की एंट्री पर असतज़ा दोबारा प्रेस क्लब पर जमा हो गए और जुमे से सिंध भर के सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमल के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। मसाइल हल नहीं होंगे, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, एहतजाज जारी रहेगा जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होंगे। कल से तदरीस अमल का बाइकआउट होगा, फर्स्ट से बोर्ड के एग्जाम का बाइकआउट होगा। GDA की रुकन असेंबली नुसरत सहर अब्बासी प्रेस क्लब पहुंची और असतज़ा पर पुलिस के तशद्दुद पर बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल जरदारी साहब, आपको मैं यहाँ से ये मैसेज दे रही हूँ, आप ट्रेन मार्च लेकर निकले, किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? वफाक के खिलाफ, जबकि कोई ऐसा एहतजाज आपका बनता ही नहीं है। आपको तो इतना भी पता नहीं है कि आपकी सिंध धरती में उस्तादों के साथ इतना जुल्म हुआ है और आप फरमा रहे हैं कि किसने कर दिया ये। गवर्नमेंट सिंध टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि तमाम मुतालबात की मंजूरी तक प्रेस क्लब पर धरना जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ अहसन चांडियो, 92 न्यूज कराची। जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में भी देखा कि सिंध के सरकारी अजाजा पर पुलिस ने तशद्दुद किया। अपोजिशन के अलावा बिलावल भुट्टो ने भी इस इकदाम की मजम्मत की और कहा है कि पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ ऐसा इकदाम नाकाबिले बर्दाश्त है। जबकि मुर्तजा वहाब ने भी एतराफ किया कि लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए। अपोजिशन के अलावा बिलावल भुट्टो ने भी मजम्मत कर दी है और कहा कि पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ ऐसा इकदाम नाकाबिले बर्दाश्त है। अब आपको बताएं कि वजीर आजम ने सिंध और बलूचिस्तान से इलेक्शन कमीशन अरकान के नाम तजवीज़ किए। अपोजिशन लीडर को खत लिखकर मुजव्विज़ा नामों पर राय मांगी। अपोजिशन लीडर ने भी जवाबी खत लिख दिया। कहा वजीर आजम ऑफिस का खत आईनी तकाज़ों को पूरा नहीं करता। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में मेडिकल चेकअप किया गया। टेस्टों के लिए खून के नमूने हासिल कर लिए गए। लाहौर से ज़ैनब शहबाज की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। तिबी बुनियाद पर जमानत के बाद नवाज शरीफ ने शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में 1.5 घंटे तक मेडिकल चेकअप कराया। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और दीगर डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ के मुख्तलिफ टेस्ट के लिए खून के नमूने हासिल किए। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद लंदन में डॉक्टर लॉरेंस से राब्ता किया जाएगा। रिपोर्ट्स और लंदन के डॉक्टर से मुशावरत के बाद इलाज का हतमी फैसला होगा। शरीफ खानदान का कहना है कि नवाज शरीफ के दिल और गुर्दों का इलाज एक साथ शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सिक्योरिटी एहलकारों और मीडिया नुमाइंदगान के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। सिक्योरिटी एहलकार मीडिया नुमाइंदगान को बाहर निकालने की धमकियां देते रहे। कैमरामैन शेर खान के साथ ज़ैनब शहबाज, 92 न्यूज, लाहौर। और दूसरी जानिब हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम कहते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन को दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। उमर जट अपनी रिपोर्ट के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी दाखिली सिक्योरिटी कमेटी का पहला इजलास खजाना, खारजा, तालीम के वफाकी वज़रा, वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी, DGISI, DGIB, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज समेत आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर खजाना असद उमर ने FATF मुज़ाकरात, वज़ारत दाखिला ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयों और मदरसा रिफॉर्म से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। इजलास के बाद जारी एलामिया में शुरका ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के आज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान कौम के आज़म के अक्कास और तमाम सियासी जमातों का मुत्तफ़िका मुआहदा है। एक्शन प्लान पर अमल किया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों की भी तारीफ की। कहा इन्हीं कुर्बानियों के नतीजे में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में नुमायां कामयाबियां मिली और मुल्क में अमन कायम हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी जानी और माली नुकसान उठाया। किसी शिद्दत पसंद तंजीम को पाकिस्तान में काम करने की इजाजत नहीं। पाकिस्तान की सरजमीन को दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। इजलास में माहिरीन पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया जो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए इदारों के दरमियान रवाबित का काम करेगा। उमर जट, 92 न्यूज, इस्लामाबाद।
اور پاکستان نے بھارت کے خلا میں میزائل تجربات کو اقوام عالم کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے انکشاف کیا کہ پلوامہ حملے سے متعلق بھارت کے ڈوزیر میں مولانا مسعود اظہر کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ مزید خبریں شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جنوبی کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو صوبے کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ آرمی چیف نے کہا بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے۔ مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جنوبی کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو صوبے کی سیکیورٹی صورتحال سمیت نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد اور آپریشن رد الفساد پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کو خوشحال پاکستان پروگرام سمیت سماجی و اقتصادی ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے سیکیورٹی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا صوبے میں سلامتی کی بہتر صورتحال سے سماجی اور اقتصادی اشاریے مزید بہتر ہوں گے۔ آرمی چیف نے کہا بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے۔ بلوچستان کی حکومت اور عوام کو روشن مستقبل کے لیے بہترین معاونت کی فراہمی ہمارا فرض ہے۔ سپہ سالار کا کہنا تھا کہ پاک آرمی نے داخلی سلامتی کو درپیش خطرات کم کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ بری فوج نے سرحدوں پر لاحق چیلنجز کا بھی بہادری سے مقابلہ کیا۔ پوری قوم دہشت گردی اور عسکریت پسندی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے ساتھ ہے۔ اس موقع پر آرمی چیف نے انفینٹری اور ٹیکنیکل سکولز کا بھی دورہ کیا اور اساتذہ سے ملاقات کی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا پاکستان کے عوام ہماری اصل طاقت ہیں، پاکستانی قوم کی توقعات پر ہمیشہ پورا اتریں گے۔ مزید خبریں بھی آپ تک پہنچائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے نیشنل نیوز UK۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں کوئٹہ ایسوسی ایشن کے اعزاز میں شائع وفد نے ہائی کمشنر نفیس زکریا سے ملاقات کی۔ ایسوسی ایشن کے چیئرمین میجر جنرل ریٹائرڈ توماس کریرن نے پاکستان برطانیہ فورم کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور دونوں ممالک کی مشترکہ روایات اور تجربات کے اشتراک کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اسی پر دیکھیں گے بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی رپورٹ۔ پاکستان ہائی کمیشن میں منعقد تقریب میں چیئرمین کوئٹہ ایسوسی ایشن لیفٹیننٹ کرنل ایلن وٹلوا، سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سر ایلیسریئر رون اور دیگر افراد شریک ہوئے۔ اس موقع پر ہائی کمیشن میں تعینات دفاعی مشیر کموڈور جمال عالم نے حاضرین کو کمانڈر اسٹاف کالج کوئٹہ کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا۔ پیغام میں کہا گیا کہ برطانوی افسران کی مسلسل شرکت کمانڈ اور اسٹاف کالج کوئٹہ اور برطانیہ کے درمیان پرانے تعلقات کا عہد نامہ ہے۔ اس سلسلے میں کوئٹہ ایسوسی ایشن نے اہم کردار ادا کیا۔ ہائی کمشنر نفیس زکریا نے امید ظاہر کی کہ کوئٹہ ایسوسی ایشن پلیٹ فارم سے نہ صرف دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان موجود روابط مضبوط ہوں گے بلکہ مختلف شعبوں میں تعاون بھی بڑھے گا۔ نفیس زکریا کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت قابل اعتماد معاشی پالیسیوں کا تعاقب کر رہی ہے جس کا برطانیہ کو بھی فائدہ اٹھانا ہوگا۔ پاکستانی ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ دونوں کے پاس اقتصادی تعلقات بڑھانے کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ لندن میں سکھ وفد کی پاکستانی ہائی کمشنر سے ملاقات۔ پاکستان کی طرف سے بابا گرو نانک کی 550ویں سالگرہ کے حوالے سے کیے جانے والے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جنرل سیکرٹری جوگ سنگھ کی قیادت میں کارسیو کمیٹی کے وفد نے پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا سے ملاقات کی۔ ملاقات میں بابا گرو نانک کے 550ویں سالگرہ کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے کرتارپور راہداری کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وفد نے حکومت پاکستان کی جانب سے تاریخی مقامات کی بحالی کے لیے کی جانے والی کوشش کی بھی تعریف کی۔ اس موقع پر ہائی کمشنر نے وفد کو پاکستان میں سرمایہ کاری اور کاروباری مواقع کے بارے میں آگاہ کیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر سال سموک لیس تمباکو کے استعمال سے ہزاروں افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ سموک لیس تمباکو کی روک تھام کے لیے آگاہی پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی حوالے سے یونیورسٹی آف یارک برطانیہ کے زیر اہتمام سیمینار ہوا جس میں جنوبی ایشیائی ممالک کے پالیسی میکر شریک ہوئے اور اس ایشو پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ بالکل، اسی پر ہم یارک سے دیکھیں گے آصف قریشی کی رپورٹ۔
स्मोक लेस तंबाकू के इस्तेमाल से हर साल हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान समेत साउथ एशिया के ममालिक में अमवात वाक़ होती हैं। स्मोक लेस तंबाकू में नस्वार, पान, गुटखा शामिल हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने से मुंह और गले का कैंसर लाहक हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क बरतानिया के ज़ेर एहतमाम सेमिनार हुआ, जिसमें स्मोक लेस तंबाकू के नुकसानात से आगाही के लिए फोरम तश्कील दिया गया। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ऑस्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज प्रोफेसर कामरान सिद्दीकी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में फोरम के मकासद बयान किए। ये एक फोरम है जो कि एकेडमिक्स को और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इकट्ठा किया इस फोरम ने, और हम एक इशू पे काम कर रहे हैं जो कि स्मोकलेस टबैको का इशू है। नस्वार बहुत कॉमन है, तंबाकू वाला पान बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, और लोगों को इस बात का इल्म कम है कि इससे मुंह का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है। तो इसकी वजह से हमें ये बातें पता लगी कि हमें क्या करना चाहिए, और हमें अवेयरनेस रेस करनी चाहिए, कैंपेन्स चलानी चाहिए, किस किस्म की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे कि ये जो इसका जो असर है वो कम हो, और स्मोकलेस टबैको जो है पाकिस्तान में बेहतर तरीके से कंट्रोल की जा सके, लोगों में अवेयरनेस पैदा की जा सके, और किस तरह से उससे जो नुकसान होता है, जो कैंसर होता है, उसको कैसे कम किया जाए। इस मौके पर डॉक्टर जुहेब ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क बरतानिया समेत पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां भी इस कंसोर्शियम में शामिल हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्मोकलेस तंबाकू बारे आगाह किया जा सके। जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की स्मोकलेस टोबैको है जो पाकिस्तान में यूज़ होती है, इसकी वजह से कैंसर हो रहा है। यहाँ पर डिस्कशंस हुई पे ये 2 दिनों में कि तकरीबन हर साल 8000 लोग की मौत हो रही है इस वजह से। तो हम लोग ये एक कंसोर्शियम है, डिफरेंट 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया भी है। पाकिस्तान से खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और आगा खान यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये पाकिस्तान का जो ग्रुप है पॉलिसी फोरम, हम लोगों ने गवर्नमेंट से भी, NGO सेक्टर से, एकेडेमिया से, यूनिवर्सिटीज़ से लोगों को इकट्ठा करके इसके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं स्मोकलेस टोबैको को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी को लोगों को जमा किया है ताकि उसके लिए सॉल्यूशंस निकाल सकें। सो हम लोग होपफुल तो बहुत हैं कि हमें इससे ऐसी कोई ठोस चीज़ें मिल जाएंगी जिससे हम इसका तदारुक कर सकें। तंबाकू कंट्रोल अथॉरिटी के डॉक्टर ज़ियाउद्दीन इस्लाम, साउथ एशिया के डायरेक्टर डॉक्टर विंदाना शाह और फराज सिद्दीकी ने भी फोरम की तश्कील को अहम करार दिया। What we achieved today and yesterday over these 2 days is a lot of discussion, a lot of learning, and a lot of engagement across issues that we otherwise felt like we were just working on an individual basis. So we're getting a lot of people on board now, a lot of policy makers, a lot of advocates, and I think this is exactly what's needed to push this agenda forward and hopefully achieve a better future for Pakistan. पाकिस्तान में स्मोकलेस टोबैको का बर्डन बहुत ज़्यादा है। हमारे पास रिसर्च की कमी थी, डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं थी। उम्मीद ये है कि इस फोरम के ज़रिए जो डेटा और रिसर्च हमारे पास आएगी उसको हम पॉलिसी मेकिंग में इस्तेमाल कर सकेंगे और पब्लिक की अवेयरनेस बढ़ा सकेंगे। We have been working on smokeless tobacco in India, Bangladesh, Pakistan over the last 10 years, and so we're very happy that this issue is being prioritized. I think it's a huge challenge in Pakistan particularly, and the government has not been doing anything on this issue, so I'm very hopeful that ASTRA can create the evidence base for the government to actually seriously deliberate upon this issue. ये वो एरिया है जहाँ गवर्नमेंट ने कभी काम नहीं किया और कोई रिसर्च नहीं हुई, हालांकि ये बहुत वास्ट नंबर्स में ये यूज़ होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये फोरम बहुत हेल्पफुल रहेगा और इन फ्यूचर भी इसकी एक्टिविटीज चलती रहेंगी और हम इसमें कोलैबोरेट करते रहेंगे। शुरका ने लोगों से अपील की कि वो मोहलिक बीमारियों से बचने के लिए तंबाकू का इस्तेमाल तर्क कर दें और सेहत से भरपूर जिंदगी गुजारें, इसलिए कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। पाकिस्तान सोशल क्लब स्कॉटलैंड के ज़ेर एहतमाम ग्लासगो में यौम पाकिस्तान की तकरीब हुई। मुकर्ररीन का इस मौके पर कहना था कि सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर काम करना चाहिए। देखेंगे शाहिद मीर की रिपोर्ट। मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। पाकिस्तान सोशल क्लब स्कॉटलैंड के ज़ेरे एहतमाम यौम पाकिस्तान की खुशी में खुसूसी प्रोग्राम मकामी होटल में मुनाकिद किया गया, जिसमें काउंसिल जनरल पाकिस्तान रोमान अहमद ने खुसूसी शिरकत की। मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है।
मुकर्रिरीन का कहना था कि पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहेगा और इसे खत्म करने वाले जिल्लत व रुसवाई उठाएंगे। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है और पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। 92 न्यूज से गुफ्तगू में शुरका का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने वतन से बेहद प्यार करते हैं और हमा वक्त पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद के लिए तैयार हैं। बहुत ही मानी हुई हस्तियाँ हैं वो तशरीफ लाई हैं और हमने मिलकर आने वाले वक्त के बारे में भी इस बारे में डिस्कस किया है कि आइंदा फ्यूचर में हम कौन से प्रोग्राम को पेश करेंगे। और बहुत सारी एशियन कम्युनिटी यहाँ पर आई है, बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पर आई हैं, कौंसलर भी यहाँ पर आए हैं, माननीय हुई शख्सियत यहाँ पर आई हैं और आज का इवेंट बहुत ही अच्छा था। इस बारे में हम पाकिस्तान सोशल क्लब की जानिब से सब आने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम ग्लासगो में पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से होते रहे। ग्रेट प्रोग्राम, ग्रेट स्पीचेस, पाकिस्तान से जो मोहब्बत का जज्बा है वो बहुत उमड़ के आ रहा था। सब ने तराने पड़े, तकरीरें की, बहुत अच्छा खाना खिलाया और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की गई। दैट वाज अ वंडरफुल प्रोग्राम। पाकिस्तान सोशल क्लब जो है ये स्कॉटलैंड में ग्लासगो का एक ऐसा मैं कहती हूँ ऑर्गेनाइजेशन है जिसने तमाम कम्युनिटीज़ को, तमाम लोगों को, पाकिस्तानियों को इकट्ठा किया है। और एज ए जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान सोशल क्लब में ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बगैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरा वतन मेरे शजर नस्ब की तरह है। आई लव पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान हमेशा सलामत रहेगा। पाकिस्तान हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक फौजी के लिए होते हैं। आज हमारे जज्बात सेम लाइक वैसे ही हैं कि आज हम पाकिस्तान के लिए उसी तरह जज्बात रखते हैं जैसे पाकिस्तान के लोग रखते हैं। हमारा ये पहला जो फंक्शन है जो हमने कौमी सतह पे बनाने की कोशिश की कौमी दिनों के लिहाज से। इंशाअल्लाह ताला आगे भी हमारा प्रोग्राम है कि पाकिस्तान के हर दिन के मौके पर जो है हम प्रोग्राम मुनक्कद करेंगे, अपनी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे और लोगों को एजुकेट करेंगे कि पाकिस्तान क्यों बना, कैसे बना और उसके मकासद क्या और उसे किस तरीके से हमने एक खुशहाल मुल्क बनाना। लोगों को एक दूसरे से नज़दीक लेके आ रहा है ये क्लब, एक दूसरे को मिल बैठने का मौका फराहम कर रहा है ये क्लब। और इस क्लब का मकसद यही है कि लोग अगर एक दूसरे के साथ रिश्ते करना चाह रहे हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके लिए ये क्लब बनाया गया था। दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ इस मौके पर फरीद अंसारी साहब को जो कि जिसके करता धरता हैं और बाकी तमाम टीम को भी कि ये एक प्लेटफॉर्म पर तमाम मरतबा फ़िक्र के अफराद, तंजीमें और सबको इन्होंने इकट्ठा किया है। तकरीब के मौके पर यौम पाकिस्तान का केक काटा गया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तकरीब में गुलाम रब्बानी, राहत जाहिद, चौधरी अब्दुल मजीद, मोहम्मद शुएब, सदर और चेयरमैन कैप्टन फरीद अंसारी और दीगर भी शरीक हुए। आज पाकिस्तान सोशल क्लब स्कॉटलैंड के ज़रिए तमाम 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से एक अहम अजलास मुनक़्क़द हुआ जिसमें हाज़रीन ने तारीख़ पाकिस्तान और यौम पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी तकरीर की और मेहमान खुसूसी तकरीर थे कौंसल जनरल पाकिस्तान रुमान अहमद साहब और मुकर्रिरीन का यही कहना था कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम व दायम रहेगा। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जख्मी होने वाले तालिब इल्म अहमद नवाज प्राइड ऑफ ब्रिटेन अवार्ड ले चुके हैं। कहते हैं पाकिस्तानी नौजवान इंतहाई बासलाहियत है। अवार्ड APS चौधा के नाम करता हूँ। बर्मिंघम से देखेंगे आबिद काज़मी की रिपोर्ट। पेशावर सानिया के जख्मी तालिब इल्म अहमद नवाज तालीमी मैदान के साथ साथ फलाही कामों में भी कामयाबियों के झंडे गाड़ रहे हैं। अहमद नवाज को ब्रिटेन ऑफ प्राइड अवार्ड से नवाजा गया। 92 न्यूज के नुमाइंदे आबिद काज़मी से गुफ्तगू में अहमद नवाज ने अवार्ड मिलने पर अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो ये अवार्ड सानिया पेशावर के शोहदा के नाम करते हैं। इस तरह शबो रोज मेहनत करके पाकिस्तान का नाम मुस्बत अंदाज में रोशन करते रहेंगे। आज मुझे प्राइड ऑफ ब्रिटेन जो ये अवार्ड मिला है तो ये अवार्ड लेकर मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है, इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ दूसरा पाकिस्तानी हूँ जिसको ये अवार्ड मिला है और मैं चाहता हूँ कि ये अवार्ड मैं आर्मी पब्लिक स्कूल के सारे शहदा के नाम करूँ, आर्मी पब्लिक स्कूल के ज़ख्मी बच्चों के नाम, आर्मी और पाकिस्तान में जितने भी नौजवान हैं जो पाकिस्तानी सोसाइटी को मजबूत बनाने में, अमन लाने के लिए जो अपना किरदार अदा करते हैं, ये अवार्ड मैं उन सब लोगों के नाम करता हूँ। अहमद नवाज का मजीद कहना था वो पाकिस्तान में नौजवानों की तालीम के लिए बहुत जल्द काम करेंगे। पाकिस्तानी नौजवान इंतहाई बासलाहियत हैं। पाकिस्तान के नौजवान बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत सी पोटेंशियल है उनमें, तो हमें चाहिए कि अपने नौजवानों को, अपने यंगस्टर्स को
اور انکریج کرے تاکہ وہ آگے آئے اور سوسائٹی میں اپنی سوسائٹی میں تھوڑی سی کنٹریبیوشنز کر سکے تاکہ پاکستان آگے جا سکیں. تو میں بھی اپنی بھرپور کوشش جاری رکھوں گا مستقبل میں پاکستانی یوتھ کے لیے اور دنیا بھر کی یوتھ کے لیے جتنا میں کر سکوں میں اپنی کوششیں کروں گا اور پاکستان کی جو ایک پازیٹیو ریپرزنٹیشن ہے تو اس کو میں دنیا بھر میں اجاگر کروں گا. اس موقع پر DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے احمد نواز کو ٹویٹ کے ذریعے مبارکباد دی اور آئندہ مستقبل میں بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا. دار اسلام میں داخل ہونے والے معروف موسیقار عمر سائمن کی پہلی نعت 29 مارچ کو ڈبلن سے لانچ ہوگی. سائمن کا کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہے کہ وہ اپنی آواز کے ذریعے اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا سکیں. عمر سائمن کا نمائندہ 92 نیوز فیصل مرزا سے گفتگو کے دوران کیا کہنا تھا دیکھیے. My name is Omar Simon and alhamdulillah I was born in London and grew up in the Caribbean island of Montserrat. Umar, when did you convert into Islam? I converted to Islam when I was roughly about 20 years ago. Basically I met a brother from Pakistan and he taught me about Islam and I was very impressed. Umar, you were always with music? Music is just your passion or music is your life? What about the music with you? Alhamdulillah, music, I'd say yes, it's been a part of my life, a great part of my life growing up. And I saw no contradiction also, being a Muslim, growing up in the West, I saw no contradiction with doing music and still practicing my Islam. Umar, your new idea, Nasheed plus music. Yes. What do you think? It will be successful? And what about your launching of new Nasheed here in Dublin? Yeah, alhamdulillah. Well, yes, I hope it will be successful, inshallah. It's a song called Trust in Allah. It's going to be out, inshallah, this Friday, Jummah, 29th of March. And I'm hoping that a lot of people, inshallah, will, tune in and watch. مزید خبریں بھی آپ تک پہنچ جائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. پاکستان تحریک انصاف ڈنمارک کے زیر اہتمام یوم پاکستان کے حوالے سے رنگا رنگ پروگرام کا انعقاد کیا گیا. مزید احوال جانیے ڈاکٹر محمد کامران کی اس رپورٹ میں. پاکستان تحریک انصاف ڈنمارک کے زیر اہتمام تراسٹریپ میں یوم پاکستان کی مناسبت سے پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس سے پاکستان تحریک انصاف ڈنمارک کے رہنماؤں کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کی نامور شخصیات نے بھی خطاب کیا. بارڈر کے ایک جانب سے فرنگی کہتا ہے ڈو مور تو دوسری جانب سے آواز آتی ہے کہ یہ تو دیش ہی آتنکوادیوں کا ہے. وار آن ٹیرر میں 70,000 جانوں کا نذرانہ دینے کے بعد بھی ہم ہی ٹیررسٹ کہلائے جاتے ہیں. آخر کیوں؟ مقررین نے اپنے خطاب میں یوم پاکستان کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے یوم پاکستان کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی. مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان قدرت کا انمول تحفہ ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. آزادی جیسی نعمت کی اہمیت ان اقوام کو پتہ ہے جو اس سے محروم ہیں.
इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया और इस अज़्म का इआदा किया गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। तकरीब में शुरका की तफरीक के लिए मिली नगमे भी पेश किए गए। इस मौके पर बच्चों ने मिली जोशो जज्बे से भरपूर तकारीर करके माहौल गरमा दिया। 21 मार्च 1940 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां लोगों का जमे गफीर आप रहमतुल्लाह के शानदार इस्तकबाल के लिए मौजूद था और तारीख बताती है कि मुसलमानों का जोशो खरोश दीगनी था और गिरदोनवा के तमाम इलाके फलक शिगाफ नारों से गूंज रहे थे। दीगर यूरोपीय ममालिक से आए फनकारों ने भी अपने फन का मुजाहरा किया और हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मिली जोशो जज्बे से भरपूर तकरीब को बेहद पसंद किया। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में पाकिस्तान कम्युनिटी के ज़ेरे एहतमाम यौम पाकिस्तान की तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें पाकिस्तानियों की भरपूर तादाद ने शिरकत की और 23 मार्च की मुनासबत से केक भी काटा गया। रिपोर्ट करें सेंट पीटर्सबर्ग से शाहिद गुम्मन। दुनिया भर की तरह सेंट पीटर्सबर्ग में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यौम पाकिस्तान पूरे जोश जज्बे से मनाया। इस हवाले से खास तकरीब भी मुनक्कद हुई, जिसमें पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान कम्युनिटी डॉक्टर फारूक खान होती और डायरेक्टर आसिफ सदीकी ने कहा कि हमारे आबा-ओ-अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों के साथ पाकिस्तान को हासिल किया। हम इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम अफराद ने मिलकर यौम करारदाद पाकिस्तान की मुनासबत से केक भी काटा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। शाहिद गुम्मन, 92 न्यूज़, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस। जद्दा में पाकिस्तानी काउंसलेट ने यौम पाकिस्तान के हवाले से एक इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें सिफारतकारों, सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान शरीक हुए। तफसीलात रियाज से चौधरी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान काउंसलेट जद्दा में होने वाली इस्तकबालिया तकरीब के मेहमान खुसूसी सऊदी वजारत खारजा के डायरेक्टर जनरल जमाल बकर अबुल गयूर थे। तकरीब का आगाज पाकिस्तान और सऊदी अरब के कौमी तरानों से हुआ। काउंसल जनरल शहरियार अकबर खान ने तकरीब में मेहमानों का खैर मकदम किया। उनका कहना था 23 मार्च 1940 को लाहौर में करारदाद पाकिस्तान के जरिए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने खुद मुख्तार रियासत कायम करने का फैसला किया और 7 साल के अरसे में अपनी मंजिल हासिल की। उन्होंने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर खादिमैन हरीमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। His Majesty King Salman bin Abdul Aziz and His Royal Highness Mohammed bin Salman, Crown Prince and Minister of Defence। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी अरब में रहने वाले 25 लाख पाकिस्तानी अफराद सऊदी माशरे का मुतहर्रिक हिस्सा हैं, जिन्होंने ममलिकत की इक्तसादी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। आखिर में मेहमान खुसूसी ने दीगर मेहमानों के हमरा केक काटा, जबकि सऊदी अरब और पाकिस्तान की सालमियत, हिफाजत और तरक्की के लिए दुआ भी की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी खुद को नेल्सन मंडेला के तौर पर पेश करते हैं। दोनों रहनुमाओं ने कौम के पैसे लूटे हैं जो उन्हें वापस करना होंगे। सऊदी अरब से उमैर अली की ये रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ को जमानत मिली है। यही कुछ हुकूमत उनको ऑफर कर रही थी, मगर वो बात नहीं मान रहे थे। हम भी यही कह रहे थे कि आप जहाँ पे इलाज करवाना चाहें, जिस डॉक्टर को बुलवाना चाहें, हम उसके लिए तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इसके ऊपर ट्वीट किया था और कहा था कि नवाज शरीफ साहब को देखें, नवाज शरीफ साहब से हमारी कोई ज़ाती लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, हमारा उनसे ज़ाती तौर के ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मसला तो यही है कि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के पैसे देने हैं। वो मेरे या इमरान खान के या पीटीआई के किसी और लीडर के कोई ज़ाती पैसे तो नहीं है। ज़ाती होते तो माफ़ भी कर देते, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने जो पैसे देने हैं वो पाकिस्तान के लोगों के पैसे हैं, उन्हें वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। दूसरी सूरत में उनको अपनी कैद पूरी करनी चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि जो उनको ज़हनी टेंशन है
वो वहाँ पर जो बाकी हज़ारों कैदी हैं उनको भी है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज महज अपने अपने वालिद को बचाने के लिए नाम नेहाद सियासी बयानबाजियां और ट्रेन मार्च कर रहे हैं, मगर एहतसाब जारी रहेगा। नवाज शरीफ या जरदारी साहब जो हैं वो ख़ुद को ऐसे पेश करते हैं जैसे वो पता नहीं कोई महात्मा गांधी या गफ़ार ख़ान या अबुल कलाम आज़ाद हैं जिन्होंने, या नेल्सन मंडेला हैं जिन्होंने को बड़ी जो है वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जेल काट रहे हैं। हकीकत ये है कि ये जो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जो हैं वो बदनवानी के केसेस में जेल काट रहे हैं, और वो उन 10 सालों के लिए जेल में है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के लोगों का पैसा लूटा है। एक के ऊपर जो है वो है कि $3 बिलियन वो खा गया, दूसरा $5 बिलियन खा के बैठा हुआ है, और उनको कहें कि पैसे वापस करने हैं तो वो कह देते हैं कि मैं बीमार हूँ। फवाद चौधरी ने अपने दौरे के हवाले से बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर सकाफती सरगर्मियों को शुरू करने के ख्वाहिशमंद हैं। इसके लिए मुश्तरका तौर पर फिल्म साजी और ड्रामा साजी को फरोग दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की सऊदी वज़ीर सकाफत शहजादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन फरहान से मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में फवाद चौधरी ने सऊदी वज़ीर को वज़ीर आज़म इमरान खान के सकाफती शोबों से नुक्ते नज़र पर आगाह किया और बताया कि पाकिस्तानी सकाफत को फ़रोग़ देने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तानी फ़नकार और गुलकार दुनिया भर में अपना अलग मकाम रखते हैं। मज़ीद खबरें भी आप तक पहुँच जाएंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए नाच न्यूज़ यूके। मैनचेस्टर में पाकिस्तानी आर्ट फिल्म रहम की नुमाइश जारी है, जिसे शायकीन की जानिब से बेहद सराहा जा रहा है। तफसीलात जानिए एतजाज़ आसिम की इस रिपोर्ट में। बरतानिया भर में पाकिस्तानी फिल्मों के फरोग के लिए सलाम पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसके तहत तमाम शहरों में आर्ट फिल्म रहम की नुमाइश जारी है। मैनचेस्टर में फिल्म रहम की नुमाइश मकामी सिनेमा में की गई, जिसे देखने के लिए खवातीन, बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद ने सिनेमा हॉल का रुख किया। फिल्म के प्रमोटर अजीज सुलेरिया ने इस मौके पर बातचीत करते हुए कहा कि सलाम पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल का मकसद नौजवान नस्ल में पाकिस्तानी फिल्में देखने का रुझान बढ़ाना है। पब्लिक को पता होगा, आपके जो नाज़रीन है उन्हें पता होगा कि बरसों से हॉलीवुड बॉलीवुड फेस्टिवल्स होते आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ तवज्जो नहीं गई। तो ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया कि पाकिस्तानी जो कल्चर है उस पर भी तवज्जो की जाए, और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पे रह रही है उनके लिए कुछ मतलब का बंदोबस्त किया जाए। तो इस सिलसिले में हमने प्रोग्राम ये इजाद किया है जिसका नाम है सलाम पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल। इस मौके पर बरतानिया के नौजवान आर्टिस्ट जफर महमूद ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी कल्चर और फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की के लिए काम किया जाए। मेन मकसद यही था ब्रदर अजीज़ का और पूरे जो है फेस्टिवल टीम का, सलाम पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल, कि कैसा इवेंट क्रिएट किया जाए जिससे जो है ना पाकिस्तान का आर्ट्स, कल्चर, हेरिटेज और पीपल जो है ना उनको प्रमोट किया जाए। फिल्म के अख्ताम पर हाजरीन ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में फिल्म की कहानी और अदाकारों की परफॉर्मेंस को खूब सराहा। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो नई नस्ल है, जो हमारे नौजवान हैं, उन तक अपनी हेरिटेज, अपना कल्चर के बारे में बताएं। और आजकल पाकिस्तान के ड्रामे, पाकिस्तान की फिल्में बहुत मयारी किस्म की बन रही हैं। The way the woman was dealt with, and then at the end it was like such a twist at the end. Wanted to know what the governor had said to her, and it's a shame we didn't find that out, but absolutely brilliant. मुसलमानों के लिए मैसेज था एक, है ना, कि अपना इस्लाम जिंदाबाद। फिल्म से यही पता लगा कि अगर एक औरत ना अपने आप पे डटी रहे ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत अच्छा सबक था इस फिल्म में। बड़ी ज़बरदस्त फिल्म बनाई इन्होंने, और जो मैसेज है ना इसमें वो बहुत ही पाइंदाबाद है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये पता चलता है कि जब एक हुक्मरान बन जाता है ना तो वो पावर हो जाती है, तो फिर वो बस अपनी चाल चलाता है और किसी की सुनता नहीं। हालिया बरसों में पाकिस्तान में मायारी फिल्में सामने आई हैं, जो न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की शायकीन में भी बेहद मकबूल हुई हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।